Welcome everybody to yet another webinar by NAB Merit. So today we have a very special guest with us, Miss Pooja Sharma. She has 6 years of extensive experience in the domain of accessibility. She holds a certification of CPACC, Certified Professional in Accessibility Core Competency by International Association of Accessibility Professionals. Additionally, she is a certified trusted tester in Section 508 compliance by the Department of Homeland Security. Currently, she is working with HCL Technologies as a senior technical lead. She has worked with various organizations such as Microsoft, Meta, Sony, etc. to help them comply with accessibility. So, Pooja, I warmly welcome you to the show. Thank you. Thank you so much, Jasdeep, for welcoming me. And I'm privileged to be here as a speaker, guest speaker. Oh, the privilege and pleasure is all ours. Okay. So I'll like to add over here that Pooja is visually challenged and she's doing wonderfully in her career. And the language for the webinar will be bilingual. So we will be using both in English and Hindi. So Pooja, सबसे पहले start करते हैं with the term accessibility. तो accessibility को कैसे समझा जाए? How do we understand it? See, most of the people like हम अगर word सुनते हैं accessibility, so generally we think, okay, this is for differently abled people, right? But accessibility is not only for the people with disabilities. It is for everyone, like regardless to their disability. It is for everyone to accessing what is like if we talk about digital accessibility, or if we talk about like um, environment, physical environment accessibility. So मतलब यही है कि सबके लिए accessible हो, everyone can access. Yeah. कोई Okay. limitation ना हो कि like we are visually impaired तो we cannot access that. नहीं, सबके लिए access होना चाहिए. So Yeah. this is accessibility. So more about removing barriers. Yes, yes. ओके ग्रेट तो जैसे हम डिजिटल एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं तो डिजिटल एक्सेसिबिलिटी अपने आप में ही काफी आई वुड से बड़ा टर्म है जिसके अंदर काफी सारी चीजें हैं वी Yes, टॉक yes. अबाउट वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी वी टॉक अबाउट डॉक्यूमेंट एक्सेसिबिलिटी एंड अदर बहुत सारी अदर थिंग्स आल्सो हम्म. नाउ मतलब हाउ डू वी कैटेगराइज एक्सेसिबिलिटी अगर मैं आपसे डिजिटल एक्सेसिबिलिटी पर से की बात करें तो Yes, there are several things like आजकल as we know कि ज़्यादातर चीज़ें we are doing online, right? हम्म और which is comfortable too और easy also. So हम्म like बहुत सारी चीज़ें होती हैं, electronic documents हैं, web pages हम access करते हैं, mainly websites and all, और हम्म mobile applications we use. So this is digital accessibility, like what what all is available online or like available to use. That हम्म is digital accessibility. या एंड अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो विजुअली इम्पेयर्ड के लिए टेक्नोलॉजी इज अ बूम तो Yes, yes, अगर ये definitely. एक्सेसिबल नहीं रहेगा तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर अस Yeah. या सो अब हम बात करें एक्सेसिबिलिटी टेस्टर की तो अगर एक्सेसिबिलिटी जैसे हमने बोला कि डिजिटल एक्सेसिबिलिटी क्या होती है एंड नाउ इफ आई टॉक अबाउट एक्सेसिबिलिटी टेस्टर तो एक्सेसिबिलिटी टेस्टर करता क्या है व्हाट इज द रोल ऑफ एक्सेसिबिलिटी टेस्टर So accessibility tester देखिए क्या होता है मेनली टेस्टिंग के डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं. एक तो ये होता है कि वी डू मैनुअल टेस्टिंग. हम मैनुअली वेब पेजेस को एक्सेस करते हैं, नेविगेट करते हैं एंड देन फाइंड आउट करते हैं कि क्या यहाँ पर कोई बटन अनलेबल्ड है या क्या यहाँ पर कोई एडिट फील्ड है जो कि लेबल्ड नहीं है, या फिर
like various things, हम्म और या फिर मतलब मोबाइल एप्लीकेशंस को ले लें अगर हम, तो हम्म मेनली जो एक्सेसिबिलिटी टेस्टर है वो यही चेक करता है कि जो जो भी एप्लीकेशन या वेब पेज हम चेक कर रहे हैं वो हम्म सबके लिए यूजेबल है, एक्सेसिबल है या नहीं है। और उसमें भी ये होता है कि लाइक देयर आर सम सॉर्ट ऑफ गाइडलाइंस, तो मेनली वो उसके बेसिस पे चेक करते हैं कि वो पेज, वेब पेज या एप्लीकेशन गाइडलाइंस, एज पर द गाइडलाइंस वो कंप्लाइंट है या नहीं है। ओके। तो गाइडलाइंस जैसे आपने अभी बोला कि गाइडलाइंस से कंप्लाइंट है कि नहीं है, तो ये गाइडलाइंस जो है ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हैं कि डिफरेंट कंट्रीज के लिए डिफरेंट होती हैं? यस यस, जो WCAG गाइडलाइंस है, वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस, हम्म like prepared by W3C, so वो तो internationally accepted है। हम्म Apart from that, there are several other like laws and guidelines जो कि जैसे यूएस का है सेक्शन हम्म 508, एंड हम्म ADA है, देन कनाडा का अपना है, देन ओके यूरोप का भी अपना है। सो अलग अलग कंट्रीज ने अब, क्योंकि कुछ तो ये है कि लाइक दे हैव मेड द लॉ, एंड कुछ फिर कंपनीज भी आजकल इंक्लूसिव हो रही है कि हाँ 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 भाई हमारा जो भी हम लाइक वी आर प्रिपेयरिंग तो वो एक्सेसिबल होना चाहिए सबके लिए। सो दीज आर फ्यू काइंड ऑफ लाइक गाइडलाइंस जो यूज किए जाते हैं टू चेक द कंप्लायंस। ओके। तो जैसे आपने बोला कि कंपनीज अभी अवेयर हो रही हैं एंड प्रोएक्टिव भी हो रही हैं, तो यस। अगर हम बात करें तो इस फील्ड में किस तरह से करियर प्रोस्पेक्ट्स हैं विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, एंड कैन बी रियली एक्सपेक्ट समथिंग गोइंग फॉरवर्ड कि और जॉब्स आएंगी इसके अंदर? Yes, yes, it has a bright career like in this field also, क्योंकि um, एक तो अवेयरनेस अवेयरनेस और ज़्यादा लाइक आने वाले टाइम में लोग और ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं, एंड देन डिफरेंट डिफरेंट लॉज हैं। तो लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम यूएस या कनाडा को लेते हैं, तो वहाँ पर लोग लाइक लॉ सूट कर देते हैं अगर कोई वेबसाइट दे फाइंड इनएक्सेसिबल। सो हम्म। सो उस वजह से भी कंपनीज को, अगर वो नहीं भी चाहें तो भी उनको अपनी लाइक वेब पेजेस की या एप्लीकेशंस की एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग करवानी ही पड़ती है। सो ओके करियर तो है, यस डेफिनेटली। ओके ओके। तो अगर मैं बात करूं एक्सेसिबिलिटी की और विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, तो कंपनीज को कितना लगता है, मतलब अगर उनका, अगर जैसे कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, तो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हमेशा ये चाहेगी कि उसको फायदा हो, तो डू दे रियली फाइंड यूजर बेस इन विजुअली इम्पेयर्ड, या फिर जस्ट बिकॉज ऑफ दीज नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस वो लोग इस तरह से करते हैं? मीन्स सॉरी आई कुडंट गेट। नो, आई वाज आस्किंग कि अगर हम कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, सो is it just because of the norms and the guidelines that they are doing this and they are employing accessibility testers, or they are giving the contracts to certain companies, या फिर reality में उनको user base है, मतलब they नहीं नहीं have? नहीं नहीं नहीं, यस यस, नाउ आई गॉट इट। या Okay. एक्चुअली I'll give the example here of Microsoft. So, हम्म as we all know, Microsoft काफ़ी बड़ी कंपनी है और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि हम लोग डेली बेसिस पर Microsoft के यूज़ करते हैं। सो दे हैव द यूज़र बेस, एंड वो चाहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो सभी यूजर्स अच्छे से एक्सेस इजीली एक्सेस कर पाए। इवन नॉट फॉर द एक्सेसिबिलिटी, देयर इज अ टर्म इफ यू टॉक अबाउट यूजेबिलिटी। ओके, okay सो यूजेबिलिटी इज एक्सेसिबिलिटी से भी और ज्यादा बढ़कर, लाइक ठीक है, एक्सेसिबिलिटी इज वी आर चेकिंग द कंप्लायंस, बट व्हाट हम्म द यूजेबिलिटी इज वी आर मेकिंग श्योर दैट द प्रोडक्ट इज यूजेबल टू द लाइक टू एवरीवन। okay हाँ, सो हाँ, आई वाज टॉकिंग अबाउट माइक्रोसॉफ्ट। सो या दे आर
doing usability audits also कि if like हमारे प्रोडक्ट में अगर कहीं पे कोई फीचर ऐसा है जिसको हम किसी और तरह से डिफाइन करके और ज्यादा यूजेबल बना सकते हैं, so they are working on that also. Okay, okay, great. So that means we have opportunities in this field. तो Yeah. नेक्स्ट मैं यही जानना चाहूंगी कि अगर अपॉर्चुनिटीज है तो इसका मतलब कोई कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होगा कंपनीज का कि व्हाट काइंड ऑफ पीपल दे वांट टू एम्प्लॉय। तो अगर किसी ने अपना करियर बनाना है इसमें तो उसको क्या ध्यान में रखना चाहिए कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्या ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स बैकग्राउंड से लोग जा सकते हैं और या साइंस बैकग्राउंड की ज्यादा डिमांड रहती है? सो इसके ऊपर भी थोड़ा सा इफ यू कैन शेड लाइट ऑन दिस। या एक्चुअली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपने बीटेक किया है या फिर बीसीए किया है तो ही आप इस फील्ड में जा सकते हैं। इवन आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम आर्ट स्ट्रीम। सो द थिंग इज कि आपको नॉलेज होना चाहिए। मेन जो स्ट्रक्चर है, लाइक वेब पेजेस कैसे बनते हैं, कौन सी लैंग्वेजेस यूज होती हैं, वो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, बेसिक टू लाइक मिड मीडियम, HTML, JavaScript, and CSS. Okay, and Okay. mainly you should know about assistive technologies, like we use screen readers, right? So different kind of screen readers for different platforms, like for as we use JAWS, NVDA, then Narrator for the web platform, and uh, like mainly for Windows, and TalkBack for Android, and VoiceOver for iOS and Mac. So इन सब का नॉलेज होना चाहिए और इनको यूज करना आना चाहिए बहुत अच्छे से। बेसिक रिक्वायरमेंट तो यही होती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइक जो गाइडलाइंस हैं, WCAG गाइडलाइंस, तो उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। लाइक वो 4 प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं, तो एटलीस्ट बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बाकी तो कौन से रूल, लाइक कौन से बग को कौन से रूल में मैप करना है, वो तो फिर जब आप प्रैक्टिकली उस चीज में जाते हो तो वो तब वो प्रिपरेशन होती है और तब वो चीजें आ जाती है। ओके, तो एक बार मैं रिएटरेट करती हूँ। तो आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी भी स्ट्रीम से आप कर सकते हैं, बट आफ्टर दैट यू हैव टू अपस्किल योरसेल्फ। जैसे आपको एटलीस्ट यू शुड बी वेल वर्स्ड विद वर्किंग विद स्क्रीन रीडर्स। तो जॉज, एनवीडीए, नरेटर, इन सब के साथ आपको अच्छे से काम करना आना चाहिए। एंड देन आपको नॉलेज होनी चाहिए जो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, सो वेब डेवलपमेंट की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। एंड आफ्टर दैट WCAG गाइडलाइंस, गाइडलाइंस जो होती है हमारी वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस, तो उसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये सब सीख कहाँ से सकते हैं अगर हम बात करें तो? ओके, सो या ये सब सीखने के लिए पहली बात तो आज के टाइम में वी हैव द इंटरनेट फॉर्चुनेटली, और गूगल पे हमें सारा कुछ मिल जाता है इतना इजीली। सो वी कैन लर्न फ्रॉम W3C वेबसाइट। वहाँ पर लाइक जो एक तो HTML और जावास्क्रिप्ट के लिए तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है W3 स्कूल्स जो साइट है। वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे से लेसन्स दिए हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ लाइक अगर कोई चाहे कि हमें फिजिकली कहीं पर जाके सीखना है, सो आई वुड सजेस्ट AICB इज द बेस्ट प्लेस जहाँ से मैंने भी सीखा है। सो विद द बेसिक एंड एडवांस कंप्यूटर, वो लोग ये लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी सिखाते हैं, सो विच इज बेनिफिशियल इफ वी लाइक इफ वी आर गोइंग टू बी इन दिस फील्ड। ओके, ग्रेट। तो मतलब देयर आर NGOs दैट आर प्रोवाइडिंग कोर्सेज जहाँ से Yes, आप yes. ये सब सीख सकते हैं। एंड ओके, तो अब जो कंपनीज हैं उसमें ऐसा कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होता है कि आपको ग्रेजुएशन मस्ट है या 12th के बाद भी किया जा सकता है? नहीं नहीं, ग्रेजुएशन तो यस, ग्रेजुएशन मस्ट है। एंड या फ्रेशर भी है तो या ग्रेजुएशन होनी चाहिए। Okay, graduation is a must. हम्म Okay. And
one more thing that I want to know is कि low vision को ज़्यादा preference मिलती है, ऐसा है या it's a myth? नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब वही है कि इफ वी थिंक लाइक 100 में से कोई 1 कंपनी या 100% में से कोई 1 और 2% ऐसा होता होगा शायद, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा नहीं है। कंपनीज विजुअली इम्पेयर्ड्स को भी लाइक चांस देती हैं। और क्योंकि क्या होता है ना कि जो 100% विजुअली इम्पेयर्ड है वो अपना एक रियल यूजर एक्सपीरियंस के बेसिस पर टेस्ट करेगा, लाइक व्हाट he or she is facing when accessing the product. So company prefer करती है visually impaired को भी। Okay, that's nice to know. I think किसी का microphone unmute है, तो please if you can mute yourself. Okay, so yeah, अगर हम skills की ही बात करें तो जैसे कॉर्पोरेट कल्चर की बात करते हैं तो इंग्लिश इज समथिंग व्हिच इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। तो आपको क्या लगता है कि कितना जरूरी है इस रोल के लिए स्पोकन इंग्लिश एंड रिटन इंग्लिश? Yeah, both are important, spoken as well as written. So क्योंकि like if we draft the issue, so उसके लिए हमें written English like grammar का और like थोड़ा अच्छा knowledge होना चाहिए so that we cannot make mistakes while writing. Although आज के time में everyone is using ChatGPT and all. Yeah. So Yeah. yeah, so that's a nice thing, like nice thing for those जो इसको ठीक से यूज करते हैं यूजिंग फॉर लर्निंग पर्पस। सो या दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट हाँ दोनों इम्पोर्टेंट है, स्पोकन इंग्लिश भी, क्योंकि व्हेन यू जॉइन दिस रोल उस टाइम पर तो हो सकता है आपको ज्यादा किसी से इंटरेक्ट करने की जरूरत ना पड़े, लाइक विद क्लाइंट्स एंड ऑल, बट हाँ धीरे धीरे व्हेन यू लाइक व्हेन यू वर्क, तो हो सकता है कि आपको क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्ट करना हो और एक्सेसिबिलिटी के कुछ फिक्सेस वगैरह उनको डेवलपर को बताने हो। सो इन दैट केस या स्पोकन इंग्लिश इज मस्ट। इज मस्ट। एंड जैसे आप खुद भी आपने यूएस प्रोसेस में भी काम किया है, सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द क्लाइंट्स जो इंटरनेशनली बेस्ड हैं, तो डेफिनेटली यस, इंग्लिश इज required. So that is one skill that is really required for this role. और what about other personality traits? अगर हम बात करें तो किस तरह के personality traits हमें develop करने जरूरी होते हैं इस तरह के रोल के लिए? बाकी तो मेनली यही है, if we are doing the if we are performing the accessibility audits, तो हमें उस टाइम पे खुद को वहां पर लाइक एज ए यूजर सोच के वर्क करना चाहिए, समझना चाहिए, लाइक इफ वी आर एक्सेसिंग दिस प्रोडक्ट तो हमको किस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तभी हम लाइक एक रियल यूजर का पर्सपेक्टिव वी कैन अंडरस्टैंड। बाकी तो यस इंग्लिश इज रिक्वायर्ड, एंड बाकी तो नॉर्मली जो होते ही हैं, लाइक यू शुड लाइक पेशेंस होना चाहिए, एंड वही सारी चीजें हैं, बाकी इतना कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। Okay, the problem solving skills and yes. all those things. Troubleshooting and all, हाँ. Okay, great. So अब suppose somebody has all these qualifications and अपने आप को prepare कर लिया, so the next question comes कि हम apply कैसे करें इस तरह की जो jobs हैं, तो directly companies के पास जाना चाहिए या फिर जो job portals हैं, क्या suggest करते हो आप? लिंक्डइन के थ्रू कर सकते हैं अप्लाई। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा नॉलेज गेन करना चाहिए कि कौन सी कंपनीज हैं जो एक्चुअली इस तरह की जॉब्स लाइक एक्सेसिबिलिटी का काम करवा रही है, क्योंकि जॉब पोर्टल्स पे भी कई बार होता है कि कुछ लाइक फ्रॉड जॉब एप्लीकेशंस हमें मिल जाती हैं देखने को। सो फर्स्ट वी शुड नो कि कौन सी कंपनीज हैं जो इस फील्ड में काम कर रही है, एंड देन वी शुड अप्लाई देयर। एंड कुछ
लाइक कम्युनिटीज भी हैं, जैसे आज के टाइम में व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जो एक्सेसिबिलिटी पे काम, लाइक एक्सेसिबिलिटी का डिस्कशंस वगैरह चलता है उनपे, तो वहां से भी जॉब्स के एप्लीकेशंस लाइक पता चल सकते हैं। ओके बाकी तो यस, लिंक्डइन, आई थिंक लिंक्डइन से ओके। यू कैन गेट। तो सोशल मीडिया इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म जहाँ से हम या इस तरह की जॉब्स के बारे में पता कर सकते हैं। ग्रेट। हम्म अब अगर हम आपकी जॉब की बात करें, बिकॉज यू आर वर्किंग विद HCL टेक्नोलॉजीज विच इज रियली रियली वेरी गुड कंपनी, एस्टीम्ड कंपनीज में आती हैं, तो अगर मैं पूछूं कि आपके लिए वाज इट डिफिकल्ट और इजी टू गेट अ जॉब at HCL? So what would you say? it was not so difficult and not so easy actually. Okay. When I was when I was in Rohini pursuing my like advanced IT course from AICB, on that Hmm. time मैंने अपना रिज्यूम दिया था 2-3 कंपनीज में। एक तो HCL टेक और दूसरा ये क्यू इन्फोटेक। सो Okay. वहाँ पे मेरा इंटरव्यू हुआ, देन फर्स्ट इंटरव्यू हुआ टू चेक द Mhm. कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड देन सेकेंड इंटरव्यू था टू check the like technical skills. Mhm. सो मेन थिंग यही थी कि ये जो WCAG के बारे में नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज, तो वो सब मैंने पढ़ा था Mhm. इंटरव्यू से पहले। एंड थोड़ा बहुत ये कि कैसे हम टेस्ट करते हैं, क्योंकि क्यूए इन्फोटेक में मैं गई थी, Mhm. वहां पर लाइक फिजिकली जाना पड़ा था। सो Okay. लाइक व्हेन आई जॉइंड HCL, उससे आई थिंक 6 महीने पहले, हाँ, क्यू इन्फोटेक में मैं गई थी। तो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर द इंटरव्यू। तो वहां पर Mhm. एक वेब पेज दिया गया था कि हाँ, इसे चेक करो और बताओ इसमें क्या इश्यूज हैं। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम। तो मुझे टाइम लगा थोड़ा कि अच्छा, क्या क्या मैं इसमें इसमें फाइंड कर सकती हूँ और क्या। तो Okay. उसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, तो वो मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिला कि ओके, इस तरह से हमें करना होता है। सो Hmm. यही सारी चीजें मैंने प्रिपेयर की थी HCL में इंटरव्यू देने से पहले। एंड इंटरव्यू में मुझसे कई सारे क्वेश्चंस यही सब पूछे गए थे कि लाइक स्क्रीन रीडर की किस चीज के लिए क्या शॉर्टकट होता है, एंड गाइडलाइंस के बारे में आप क्या जानते हो। अगर ये लाइक फॉर एग्जांपल अगर किसी बटन का रोल नहीं है तो आप उसको कौन से रूल में मैप करोगे, ये कुछ बेसिक चीजें पूछी गई थी। एंड देन आई गॉट सेलेक्टेड। ओह वाह, ग्रेट। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि डोंट थिंक कि आपका एक जगह पे नहीं हुआ, एक कंपनी में नहीं हुआ तो आगे आप डिसहार्टन हो जाओ। कीप ऑन या ट्राइंग एंड एवरी टाइम इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस एंड इट्स अ लर्निंग। तो अपने आप को और इम्प्रूव करो और आगे देन यू कैन अप्लाई। बहुत मतलब देयर इज नो डर्थ ऑफ दीस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ग्रेट हम्म पूजा, वंडरफुल। तो अब मैं बात करूं कि अगर पे स्केल की बात करूं तो आपको क्या लगता है व्हेन इफ समबडी जॉइंस एज एन हम्म एक्सेसिबिलिटी टेस्टर तो किस तरह का पैकेज एक्सपेक्ट कर सकता है? अगर किसी बड़ी कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं लाइक HCL, TCS, विप्रो, सो आई थिंक 2 LPA और 3 LPA इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। छोटी कंपनीज थोड़ा सा लाइक एज अ फ्रेशर को थोड़ा सा शायद कम पे करें, बट हाँ, इतना इतना तो लगभग रहता ही है। ओके ओके, ग्रेट। तो एंड वन मोर थिंग अभी एक पूछूंगी मैं आपसे, बिकॉज दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, हमें पता होना चाहिए वेयर वी आर हेडिंग। तो करियर ट्रैजेक्टरी अगर हम बात करें कि या करियर पाथ, तो हम्म क्या रहता है एक एक्सेसिबिलिटी टेस्टर का? करियर पाथ क्या रहता है आफ्टर दिस, वंस वी गेट अ जॉब, तो हम्म उसके बाद क्या? सो इनिशियली जब ज्वाइन करते हैं उस टाइम तो लाइक मेनली टेस्टिंग का ही काम होता है, हम्म एंड रोल होता है एक्सेसिबिलिटी टेस्टर। तो हम्म, वहाँ पर मेनली बस मैन्युअली टेस्टिंग करनी होती है, और कुछ टूल्स भी हैं लाइक जैसे DQ का नाम अगर आप लोगों ने किसी ने सुना हो, या देयर या इज अ कंपनी DQ। सो या उनका उन्होंने टूल बनाया हुआ है
AXE, जो कि ऑटोमेटेड टेस्टिंग के लिए यूज होता है। तो वो एक टूल है, माइक्रोसॉफ्ट का है, एक्सेसिबिलिटी इनसाइट्स। सो हम्म, इन टूल्स के थ्रू ऑटोमेटेड टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है। सो मैनुअली तो यही, लाइक इन द बिगनिंग यही रहता है, टेस्टिंग, एंड देन उसके बाद लाइक सिनेरियो क्रिएशन, कि आप कैसे कैसे टेस्टिंग, कैसे ऑडिट्स परफॉर्म करोगे, किस सिनेरियो के बेस्ड पर। लाइक अगर ओके। आपको एक, फॉर एग्जांपल, एक साइन इन पेज है, ठीक है, तो नाउ यू हैव टू क्रिएट द सिनेरियोज की, हाँ पहले यूजर क्रिएट अकाउंट करेगा, ठीक है, हम्म, अकाउंट क्रिएट करके देखेगा, देन फॉरगॉट पासवर्ड भी करके देखेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें इस तरह से, सिनेरियो क्रिएशन, फिर उसके बाद SME, लाइक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का भी रोल होता है। ओके। जब आपको 4 5 5 सालों का एक्सपीरियंस, 5 से 6 सालों का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो ओके। सो उस रोल में यू कैन प्रोवाइड द फिक्सेस टू द डेवलपर्स, कि ओके। अगर कोई एक्सेसिबिलिटी का इशू है तो हाउ यू कैन फिक्स दैट, वो आप उनको बता सकते हो। तो ओके। एक लाइक आर्या होता है, आर्या या। एक्सेसिबल रिच इंटरनेट एप्लीकेशन। सो उसके थ्रू like it is something which can help to fix the like accessibility issues. तो it is a set of code actually. तो उसके थ्रू आप बता सकते हो डेवलपर्स को कि आर्या का कौन सा एट्रीब्यूट यूज करके आप इस इशू को फिक्स कर सकते हो। ये सारी चीज होती हैं। देन उसके बाद एक्सेसिबिलिटी कंसल्टेंट का होता है। उसमें भी आप क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकते हो कि व्हाट सर्विसिंग यू आर प्रोवाइडिंग, व्हाट सर्विसेज यू आर प्रोवाइडिंग, और किस तरह से आप एक्सेसिबिलिटी पे काम करते हो, तो सो दैट यू कैन गेट दी प्रोजेक्ट्स एंड ऑल। तो यस, ये सारा होता है। Okay, great. So we have several options after that. So SME जैसे subject matter expert, and then we have this option of becoming accessibility consultant. और अभी आप team lead हैं. यस यस, So that means you have a team under you who's doing all या this. एंड उसमें ये भी होता है, लाइक मेरे रोल में अभी क्या है कि जो न्यू मेंबर्स आते हैं उनको मेंटर करना, और उनको बताना कि कैसे एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग होती है, और जो भी नया आता है फील्ड में, लाइक अभी जैसे WCAG 2.2 करंटली चल रहा है, एंड 2.3 का सॉरी WCAG 3 का ड्राफ्ट अभी फोकस इसमें ड्राफ्ट में है, अभी चल रहा है। सो मतलब यही है कि क्या अभी फील्ड में नया चल रहा है, क्या आने वाला है, उन सब के बारे में अवेयर खुद भी रहना, और अपनी टीम को भी रखना, तो वो सारी चीजें। Okay, great. तो आई थिंक बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल था जितना भी आपने बताया। अब मैं ये पूछना चाहूंगी कि पूजा अपने फ्री टाइम में क्या करती है? फ्री टाइम में वही थोड़ा एक्सप्लोर करना, पहला तो ये कि टेक्नोलॉजी में क्या नया चल रहा है। बाकी म्यूजिक से मेरा शुरू से रहा है, तो कीबोर्ड प्ले करना, एंड थोड़ा बहुत गा लेना रिकॉर्डिंग वगैरह। बाकी तो यस, यही सब, थोड़ा चिट चैट फ्रेंड्स के साथ। ओके। ओके, ग्रेट। सो यस, तो जैसे आपने देखा कि अपने आप को अपडेट रखना भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जैसे फ्री टाइम में भी पूजा यूटिलाइज करती हैं अपना टाइम टू लर्न न्यू टेक्नोलॉजी, एंड ये तो मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ दैट शी इज अ लवली सिंगर एंड बहुत अच्छा कीबोर्ड भी प्ले करती हैं। सो यस, दैट्स वन थिंग जो कि आपको हमेशा इट मेक्स यू कीप गोइंग एंड एंजॉयिंग योर लाइफ। तो ग्रेट पूजा, बहुत ही मजा आया। एंड नाउ आई वुड फर्स्ट आस्क पूनम मैम इफ शी वांट्स टू आस्क समथिंग। You two are too good. I mean, it was the term which she used. It was really like a drawing room chit chat. Both of you made it sound so simple, such a complicated topic, but maybe because you are good friends. But thank you so much, Pooja, and thanks Jasdeep for bringing her here.
because many of our students are keen, और तुमने बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर दिए कि साइंस या टेक्नोलॉजी लाइक स्टडी वाइज वही जरूरी नहीं है, बिकॉज यू नो कि हमारे स्कूल्स में बहुत बार बच्चों को डिस्करेज कर देते हैं विद विजुअल इम्पेयरमेंट, दे डोंट गिव देम साइंस, वो टीचर्स मेक इट काइंड ऑफ सो डिस्करेजिंग कि तुम क्यों ले रहे हो। तो पर अगर इंटरेस्ट है किसी टेक्नोलॉजिकल उसमें तो आपका फील्ड बहुत अच्छा है। And as you were honest enough, maybe because she was a girl, so she didn't mind saying about the salary and this thing, but it is important क्योंकि बहुत अच्छा वो है। और तुमने जैसे बताया कि कैसे करना है, you explained everything in detail, कि लिंक्डइन और ये सोशल मीडिया ये सब बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। तो नाउ आई नो हैंड इज रेज्ड, पर हमारे जो लिसनर्स हैं, आप लोगों में से जो भी क्वेश्चन पूछना चाहें पूजा मैम से, यू कैन आस्क, but only related to technology, not about the singing. Yeah, and please पहले अपना नाम बताइएगा, हाँ, then नाम ask और the आप question. कहाँ से हो और आपकी एजुकेशन, so that it is easy for her to. Yes, Ashutosh Patel, I think. Good evening, ma'am. I'm Ashutosh and I'm from Rani, Ahmedabad. Good evening. So, मैम जैसे आपने बताया कि अप्लाई करने के लिंक्डइन और वो सारे ऑप्शंस है, लेकिन अगर हमें कोई यूट्यूब चैनल से या इंटरनेट से सीखना हो, लाइक HTML एंड जावा, सो हम कहाँ से सीख सकते हैं? इंटरनेट पे जैसे मैंने बताया, अगर आपको HTML सीखना है तो W3 Schools ये एक वेबसाइट है जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ से जो HTML के कोर्सेज प्रोवाइड करती है, HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS। सो वहाँ से आप सीख सकते हैं। एंड यूट्यूब पे आज के टाइम में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट आई हैव नो आइडिया कि हमारे लिए कौन सा एक्सेसिबल है। बिकॉज क्या होता है ना कि वो लोग सिखाते हैं और बहुत अच्छा सिखाते हैं, बट क्योंकि वो स्क्रीन पर डिस्प्ले करते हैं और हर चीज वर्बली बताते नहीं है, तो एक यूट्यूब चैनल से सीखना हमारे लिए कभी थोड़ा थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि यस मैम, कई बार होता है ना, कुछ चीजें तो हमें समझ आ जाती है, बट कुछ चीजें उन्होंने बोला कि देखो ये कोड लिखा हुआ है, इस चीज के लिए आपको ये एट्रीब्यूट यूज करना है, इस चीज के लिए आपको ये टैग यूज करना है। तो वो लिखा हुआ है बट उन्होंने नहीं बताया लेस HTML ग्रेटर, लेस H1 ग्रेटर, तो हमें नहीं वो चीजें समझ आ पाती हैं। सो माय एडवाइस वुड बी कि आप जो W3 स्कूल्स है ना वेबसाइट, वहां से सीखिए। वहां पर आपको प्रॉपर सब कुछ लेसन्स लिखे हुए मिलेंगे। यू कैन रीड इट बाय लाइक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, और जैसे भी आप चाहें, और उसको एग्जीक्यूट करके आप अच्छे से सीख सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। या वेलकम। Ashutosh single. I think we are going theme wise. Ashutosh, why don't you ask your question yourself? गुड इवनिंग मैम। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अगर हमें एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड कोई फीडबैक देनी है ऐसे एजेंट को जिसको बिल्कुल इंफॉर्मेशन नहीं है कस्टमर केयर को, तो हमें उसको फीडबैक कैसे देनी चाहिए कि प्रॉपर हमारा इशू उनको कन्वे हो जाए और वो प्रॉपर डेवलपर तक पहुंच जाए। क्या होता है ना कि बहुत सारी बार कस्टमर केयर वाले उसको इशू को ढंग से समझ नहीं पाते और वो डेवलपर तक हमारी बात को पहुंचाते नहीं है। वो बोल देते हैं कि थर्ड पार्टी ऐप चला रहे हो आप, आइदर यू आर यूजिंग नरेटर और जोज, so that's why you are facing issue. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप ऐसा कोई इशू मतलब कोई भी इशू आप फेस करते हैं ना, पहले आप उसको दोनों तीनों स्क्रीन रीडर्स के साथ एक बार वेरीफाई कीजिए कि कहीं ये स्क्रीन रीडर स्पेसिफिक तो नहीं है। क्योंकि कई बार ये चीज होती है कि कोई इशू एक्चुअल में उस एप्लीकेशन का नहीं होता है, बट वो हमारे स्क्रीन रीडर के साथ में भी कंपैटिबल नहीं है, या फिर स्क्रीन रीडर के अपडेट में कोई इशू आया है, तो उस वजह से हो सकता है। So first of all, you have to verify this with all 3 screen readers. और उसके बाद आप कस्टमर केयर को कैसे, मतलब you can directly share it with the developers by giving the feedback. फीडबैक का सेक्शन होता है ना, तो आप फीडबैक में जाके अपना इशू वहां पर
लिख सकते हैं। और अगर ऐसे भी नहीं रिजॉल्व होता है तो you can create a short video of screen, like you can record your screen ना, कि when you are like when you are accessing the page, you are facing this issue. So इस तरीके से आप अपना जो है इशू वो डेवलपर्स तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल सही आंसर है। मतलब वो थोड़ा मैंने गलत क्वेश्चन पूछा है। ये दूसरा मेरा क्वेश्चन है मैम, थोड़े मल्टीपल क्वेश्चन है। हाँ, मान no लीजिए problem। हमारे पास डेवलपर है, जैसे व्हाट्सएप की मैं बात करता हूँ, व्हाट्सएप की एक्सेसिबिलिटी टीम है, उसको कितना ही फीडबैक भेज लो, वो रिप्लाई देगी यू आर नॉट यूजिंग ऑफिशियल व्हाट्सएप, इवन तो अच्छा। हम उनको इंटरनेशनल फॉर्मेट में नंबर भेजते हैं। तो उसके बावजूद भी उनको ये आता है कि यू आर नॉट यूजिंग ऑफिशियल व्हाट्सएप। अगर उन्होंने मान भी लिया कि वो ऑफिशियल यूज कर रहे हैं व्हाट्सएप, उसके बावजूद भी वो लाइक इशू को रिजोल्व नहीं करते हैं, और या उसको फीडबैक को ढंग से कंसिडर नहीं करते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस भी है, और जितने भी मैंने अभी तक सुना है व्हाट्सएप वालों का, एक्सेसिबिलिटी टीम का, सबका ऐसे ही एक्सपीरियंस है। ओके, हाँ ये हो सकता है, कुछ कुछ लाइक कुछ कुछ टीम्स ऐसा करती हैं। सो मे बी वो तो देखो फिर दैट इज देयर कॉल। वो अगर उसको नहीं रिजॉल्व कराना चाह रहे हैं या उनको उतना फर्क नहीं पड़ रहा है, देन यू कैन गो विद ट्विटर। आप ट्वीट कर सकते हो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, और अगर वो नहीं सुन रहे हैं तो आप ट्वीट कर सकते हो। बाकी तो देखो इट्स अप टू देम, अगर वो कितना भी हमारे बताने पर समझाने पर नहीं रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, सो उसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनका है, वो उसको लाइक दे आर डेवलपिंग दैट। तो बस हम अपनी तरफ से एक लाइक ट्राई कर सकते हैं और उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दिस इज द इशू वी आर फेसिंग। Pooja, Ashutosh is an activist. Yeah, I was about to say that. Okay. He is accessibility और- activist. हाँ, और ये वैसे ही सबकी नाक में दम किए रहता है, अब और भी ज्यादा। ओह अच्छा अच्छा। पर गुड थोड़ी ट्रिक्स और सीख लिया आशुतोष ने। गुड। अभी तक ये काफी काफी कंपनीज को सॉर्ट आउट कर चुका है वैसे। अच्छा, हाँ करती हैं कई बार कंपनीज ऐसा। मतलब मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है। हम लोग जब मैं व्हेन आई वाज इन नोएडा, जब मैं वर्क फ्रॉम ऑफिस कर रही थी, तो आई यूज्ड टू गो विद लाइक बाय ओला रैपिडो। तो उनके एप्स इतनी ज्यादा गंदी होती थी, इतनी प्रॉब्लम आती थी, उनको कितना भी बोल लो वो नहीं, अब हमें नहीं करना है, फिक्स तो नहीं करना है, हमारा तो काम चल रहा है। तो वो वाला इशू हो जाता है। Yeah. अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है, इतने ज्यादा एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग के जॉब्स हैं अवेलेबल, जो एक्सेसिबिलिटी टेस्टर्स हैं ज्यादातर वो बस एज ए जॉब कैरियर ही लेते हैं उसको, कभी वो फीडबैक नहीं देते हैं, ऐसा मैंने मतलब देखा है। मतलब आई एम नॉट गोइंग पर्सनली, पर कोई फीडबैक देने को तैयार ही नहीं है इंडिया में, या कुछ लीगल एक्शन लेने को तैयार ही नहीं है। अच्छा, तो ये फिर आपका एक्सपीरियंस है। हाँ हो सकता है ऐसा होगा। मतलब वो फिर उनका पर्सनल ओपिनियन है ना, अगर वो नहीं करना चाह रहे हैं और या उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं है, या फिर उनके पास वर्क अराउंड है, या फिर वो उस सर्विस को यूज ही नहीं कर रहे हैं। तो होता है कई बार लोग कि भाई हम तो यूज नहीं कर रहे तो हम क्या ही। वो तो देखो उनका पर्सनल है कि वो खुद इस फील्ड में होते हुए भी अगर इस चीज को नहीं पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं तो Yeah, इसमें मतलब हाँ it's all depends on person to person. ये या You cannot force anybody to do that. ओके, थैंक यू सो मच मैम। Okay. Yeah. Thank you, Ashutosh. Anji, any other questions? गुड इवनिंग मैम, आई एम असित महापात्रा, आई एम फ्रॉम ओडिशा। और मैम मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आपको तो HCL में आपको कौन सा स्क्रीन रीडर देते हैं? एक्चुअली जो प्रोडक्ट हम लोग टेस्ट करते हैं ना, उनकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पर हम लोग स्क्रीन रीडर यूज करते हैं। लाइक मैं अगर कहूँ तो हम लोग सारे ही स्क्रीन रीडर यूज करते हैं, क्योंकि किसी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है कि आप हमारे प्रोडक्ट को इस स्क्रीन रीडर के साथ टेस्ट करो। किसी की रिक्वायरमेंट होती है कि आप हमारे प्रोडक्ट को सारे स्क्रीन रीडर्स के साथ टेस्ट करो, सो दैट वी कैन नो कि हमारा प्रोडक्ट कौन से स्क्रीन रीडर के साथ कितना कंपैटिबल है और हमें कहाँ फिक्सेस करने की जरूरत है। So HCL itself is not providing any screen reader, but
हाँ, ये है कि जैसे एनवीडीए तो एज वी नो वो तो ओपन सोर्स है। हमारे पास कंपनी की तरफ से लाइक जॉज का भी लाइसेंस है, क्योंकि हमें जॉज भी रेगुलरली यूज करना होता है। एंड देन नरेटर तो विंडोज के साथ आता ही है, तो हम लोग सारे ही स्क्रीन रीडर यूज करते हैं एक्चुअली। हाँ, ये सब मैंने कई जगहों पर सुना है ना, कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब्स देते हैं, एनवीडीए नहीं देते हैं, ऐसे तो इसलिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको टेस्टिंग परफॉर्म करनी है तो वो तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम सारे ही स्क्रीन रीडर्स के साथ करनी होती है, क्योंकि हम नहीं जानते ना कि यूजर कौन सा स्क्रीन रीडर यूज करने वाला है। और आज के टाइम में ज्यादातर लोग तो एनवीडीए ही यूज करते हैं, बिकॉज इट इज ओपन सोर्स और आपको उसके लिए पे नहीं करना पड़ता। तो ज्यादातर लोग वही यूज करते हैं। जॉज तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, एंड क्रैक तो इज नॉट अ गुड थिंग टू डू। तो बंद हो गया अब मिलना। हाँ, वो तो पता नहीं इस बारे में मुझे, क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती। सो या Okay. Nilesh Parmar. हेलो मैम। हेलो। मैम मेरा एक प्रश्न है कि 2-3 प्रश्न है। एक हाँ, बोलिए। एक तो फ्रीलांसिंग में कैसी अपॉर्चुनिटी है मैम एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग में? ओके, फ्रीलांसिंग में भी है, बट उसमें अगर आप थोड़ा सा एडवांस आपको नॉलेज हो ना, तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सिर्फ टेस्टिंग तो परफॉर्म कम करवाते हैं लोग। फिक्सेस वगैरह का ज़्यादा रहता है कि हाउ टू डू द एक्सेसिबिलिटी फिक्सेस। तो आपको आर्या का नॉलेज होना चाहिए। तो उसमें है, मतलब अपॉर्चुनिटी है फ्रीलांसिंग में भी। और दूसरा क्वेश्चन है कि जब हम टेस्टिंग करते हैं तो रिपोर्ट कैसे मैम लिख सकते हैं? ओके, उसके लिए सबका ना थोड़ा थोड़ा अलग फॉर्मेट होता है, बट बेसिक अगर मैं बात करूँ तो देर आर सम टाइटल्स लाइक थिंग्स जो आपको नोट करने होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इशू का टाइटल क्या है, जिसको हम बग टाइटल बोलते हैं। तो लाइक अगर हम एग्जाम्पल के लिए एक इशू लेते हैं कि क्या इशू लें? Alt attribute is a very या तो कोई इमेज है, ठीक है, आप कोई वेब पेज एक्सेस कर रहे हैं, एक इमेज है जिसका कि ऑल्ट नहीं दिया हुआ है, और वहां पे जब आप स्क्रीन रीडर चला रहे हैं तो स्क्रीन रीडर आपका अनाउंस करता है ग्राफिक या नो डिस्क्रिप्शन अवेलेबल, इस तरह से कुछ। ओके, ओनली ग्राफिक। तो आपको नहीं पता कि उस ग्राफिक का क्या मीनिंग है, क्या दिखाया जा रहा है उस ग्राफिक में। सो उस तरह से हम फिर बग को ड्राफ्ट करते हैं कि ऑल्ट एट्रीब्यूट इज नॉट डिफाइंड फॉर द इमेज। ये हमारा बग का टाइटल हो जाएगा। फिर हम लिखते हैं यूजर एक्चुअल यूजर इम्पैक्ट, कि यूजर को उससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। so user will not be able to know what is there in the graphic and what is the purpose of the graphic। ठीक है, ये यूजर इम्पैक्ट। फिर इस तरह से रेप्रो स्टेप्स लिखते हैं कि आपको कैसे ये इशू, कहाँ पे जाके आपको ये इशू फेस हो रहा है। फिर हम एक्सपेक्टेड लिखते हैं कि होना क्या चाहिए। तो इस तरह से एक इशू को ड्राफ्ट करते हैं। ओके, थैंक यू मैम। या वेलकम। Rebellion. Yes, ma'am. Ma'am, so I wanted to ask that, how far has the sensitization of digital accessibility come? If we take, for example, if Amazon is accessible, then what about Flipkart? Does it, have an accessibility testing team as well? Because it seems to be inaccessible. Right. So there are several like sites, or we can say multiple applications जो कि inaccessible हैं। So like वही है, जैसे मैंने पहले कहा, as I said earlier, कि कंपनीज धीरे धीरे इंक्लूसिव हो रही हैं, दे आर वर्किंग ऑन दैट, बट अभी उतना ज्यादा नहीं है। हर कंपनी या हर डेवलपर को लाइक उनको क्या लगता है ना कि एक्सेसिबिलिटी इज समथिंग वी नीड टू डू एक्स्ट्रा ऑन दिस। सो वो थोड़ा धीरे धीरे हो रहा है अभी। तो काफी हद तक चीजें एक्सेसिबल होने लग गई है। सो होप फॉर द बेस्ट, फ्लिपकार्ट भी एक्सेसिबल हो जाएगा।
हाँ, thank you, ma'am. Yeah, I think Ashutosh Patel wants to ask something again. यस मैम, फिर से आशुतोष। हाँ जी, हाँ जी। और मेरा एक क्वेश्चन ये भी है कि जैसे आपने कहा आर्या का नॉलेज गेन करना चाहिए, सो वो हम कहाँ से कर सकते हैं? वो भी आपको मिल जाएगा W3 स्कूल्स पर, और ये हाँ W3C की वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा आर्या के सारे एट्रीब्यूट्स। और एक आप गूगल करेंगे ना आर्या लाइक ऑथरिंग प्रैक्टिस गाइड, तो आपको सारे ही एट्रीब्यूट्स, सारे रोल्स आर्या के जो हैं वो मिल जाएंगे कि आपको लैंडमार्क के लिए क्या लगाना होता है, बटन्स के लिए क्या लगाना होता है, हेडिंग्स के लिए क्या, मतलब सारे ही आपको वहां से सीखने को मिल जाएंगे। ओके मैम। और मैम W3 स्कूल्स की जहाँ तक आपने बात की, वहाँ पर क्या ऑडियो में मटेरियल अवेलेबल होता है या इन द टेक्स्ट ओनली? जहाँ तक मैंने देखा था टेक्स्ट में होता है, सो टेक्स्ट वुड बी इजियर टू डू ना, आप उसको रीड कर सकते हैं इजीली। हाँ ओके मैम, थैंक यू। ओके मैम मेरा 2 क्वेश्चन है। जैसे कि मैं जब हिंदी पीडीएफ को रीड करता हूँ तब वो ऐसे कोड की तरह रीड करता है, XFDDD ऐसे करके रीड करता है कोड की तरह, तो उसको सही करके एक्सेसिबल बनाया जा सकता है? आप कौन से एप्लीकेशन या किसके थ्रू आप रीड करते हैं? मैम एनवीडिया के थ्रू। ओके, एनवीडीए से आप रीड कर रहे हैं किसी पीडीएफ को, और वो टेक्स्ट फॉर्मेट में ही है? नहीं मैम, हिंदी का पर्टिकुलरली हिंदी का रीड करता है लेकिन प्रॉपरली रीड नहीं करता है। नहीं, उसमें ये हो सकता है ना, देखिए, या तो फिर वो किसी लाइक उस स्पेसिफिक पीडीएफ में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या वो टेक्स्ट फॉर्मेट में, प्रॉपरली टेक्स्ट फॉर्मेट में है, या फिर कुछ लाइक क्या कुछ डिजाइंड है या कुछ है, इस तरह से कुछ हो सकता है। अगर वो प्रॉपरली टेक्स्ट फॉर्मेट में है बट वो जब रीड करता है, जैसे कि आपको पता है हिंदी और मात्रा आदि सब कुछ होते हैं, उनको इंडिविजुअल में प्रोनाउंस करने को कोशिश करता है, लेकिन कुछ कुछ वर्ड्स को प्रॉपरली रीड नहीं करता। एनवीडीए, ओके। और आप क्या यूज करते हैं उसके लिए? ई स्पीक? यस मैम, ई स्पीक। अच्छा अच्छा, और आपने ये सारे पीडीएफ्स के साथ आपको प्रॉब्लम आती है? यस मैम। सारे हिंदी? यस मैम। अच्छा अच्छा, एक्चुअली हिंदी का मेरा यूज है नहीं ना, सो इसलिए मतलब मेरा इंग्लिश का ही यूज रहता है, और हिंदी कभी पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती, और ई स्पीक वगैरह यूज भी नहीं होता है। सो आई डोंट थिंक कि ये एनवीडीए का कोई इशू होगा, बिकॉज एनवीडीए हिंदी प्रॉपर्ली रीड करता है। वर्ड डॉक्यूमेंट को करता है। यस मैम, मैंने भी देखा है। और शायद ये हो सकता है कि उनका जो अडोबी रीडर या जो कोई भी एप्लीकेशन हो उसमें शायद इश्यू हो, या उनका ई-स्पीक का वर्जन पुराना हो। नहीं, पुराना नहीं, मैं गूगल क्रोम से करता हूँ और ये वर्जन है 2024.1। अच्छा, 2020.1। माइक्रोसॉफ्ट एज में भी ओपन करके ट्राई किया है उसको, पीडीएफ को? यस मैम, क्या था? अच्छा, सेम इशू यू आर फेसिंग ना? यस मैम। तो फिर एडोबी वगैरह में ट्राई कीजिए, वो पीडीएफ रीड करने के लिए बेस्ट है। अच्छा, और एक क्वेश्चन था, तो इमेज वाले पीडीएफ को हम लैपटॉप के थ्रू कैसे एक्सेसिबल बनाएंगे? इमेज वाले पीडीएफ को, लाइक इमेज है और आपको क्या उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है? नहीं, पीडीएफ होगा लेकिन वो स्कैन या फोटो क्लिक किया होगा, बस उसमें उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। ओके, कन्वर्ट टेक्स्ट। ओके, तो जॉज, आप जॉज यूज करते हैं एनवीडीए? मैं एनवीडिया यूज करता हूँ। अच्छा अच्छा, एनवीडीए में ओसीआर का होता है ना फीचर, आप ओसीआर करके कर सकते हैं उसको। मैं तो जॉज का ओसीआर यूज करती हूँ पर्सनली, अगर मैं बताऊँ तो, अगर ऐसा कभी जरूरत पड़ती है तो जॉज का ओसीआर यूज करके वो उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। या जॉज में तो इनबिल्ट ओसीआर है उसका, काफी अच्छा है। इसका मैं एड ऑन इंस्टॉल किया था, टेक्सचर ओसीआर नाम का एड ऑन है एनवीडिया का, बस उसमें यूज कैसे किया जाता है उसको?
अच्छा, एक्चुअली मैंने वो एड ऑन यूज किया नहीं है ना, सो ये तो आपको जहां से आपने हाँ। इंस्टॉल किया था वहां पे आपको यूजर गाइड भी मिला होगा या डॉक्यूमेंटेशन। मैम जो एनवीडिया मेनू में होता है ना एड ऑन स्टोर, वहीं से मैंने हाँ हाँ हाँ, इंस्टॉल किया। बिल्कुल। ओके, एड ऑन स्टोर, ठीक है, तो नो प्रॉब्लम, आप गूगल कीजिए एक बार और वहां पे आपको लाइक हाउ टू यूज दिस एड ऑन करके ना, तो आपको उसके शॉर्टकट्स और वो सारी चीजें मिल जाएंगी इजीली। ओके। या तो आई थिंक हो गया शायद, वी डोंट हैव एनी मोर क्वेश्चंस। ग्रेट पूजा, Yeah. it was really wonderful to have you with us, और बहुत अच्छा सेशन रहा एंड बहुत कुछ सीखा आज सबने यहाँ पे, तो थैंक्स अ या लॉट। मुझे भी बहुत अच्छा लगा ज्वाइन करके और इंटरेक्ट करके। या Thank you so much, Pooja. हेलो। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हिमांशु स्पीकिंग। मैम मेरे को एक चीज ये कंफर्म करनी थी, जैसे कि ये एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग का जो भी है, ये जैसे एआई आ रहा है, तो कितनी इससे हमारे इस प्रोफेशन पे कितना इफेक्ट आएगा? मतलब जैसे एआई आ रहा है, वो मोस्ट ऑफ थिंग्स को अपना आप ही कर ले रहा है ज्यादातर का, तो जैसे एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग हम करते हैं, तो इस जॉब अपॉर्चुनिटी में फ्यूचर कैसा हो सकता है? मतलब या गुड क्वेश्चन। हाँ हाँ, आगे भी है। तो मैं ये जानना, मैक्सिमम इसमें हमारी अर्निंग किस लेवल तक जा सकती है? और थर्ड ये कि ये नेशनल और इंडिया में कितना है, और आउट ऑफ स्टेशन कितना है? थोड़ा इस बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन। देखिए, इट्स राइट कि एआई आ रहा है, एआई में आजकल मार्केट में एआई का काफी भी चल रहा है। और जो मैं अभी बता रही थी पहले कि ऑटोमेटेड टेस्टिंग के लिए जो यूज होते हैं टूल्स, इनफैक्ट डीक्यू उस पे भी, अपने टूल पे भी वर्क कर रहा है टू इंटीग्रेट एआई इन द टूल। सो बट स्टिल जो कुछ चीजें हैं जो हम मैन्युअली ही चेक कर सकते हैं, अभी भी एआई क्या करता है ना, या टूल, कोई भी टूल है वो क्या करता है कि आपको कोड के बेसिस पर इश्यूज निकाल के देता है। ठीक है, अगर आपने कोड में सही एट्रीब्यूट यूज नहीं किया है, उसके बेसिस पे वो आपको निकाल के देता है इश्यूज। ठीक है, बट कई बार क्या होता है ना कि वो एक्चुअल में उसका इम्पैक्ट नहीं होता यूजर के लिए, तो वो चीजें ह्यूमन माइंड ही समझ सकता है। सो जॉब तो लाइक स्कोप तो है इस फील्ड में, अगर एआई भी आ रहा है फिर भी। ठीक है, बाकी आपने कहा कि हाँ, कितना अर्न कर सकते हैं, आई थिंक ये आपने कहा। सो किसी भी जॉब में आप एंटर करते हो किसी भी फील्ड में, सो स्टार्टिंग तो कम से ही होता है, सबको पता है, बट बहुत अच्छा आप अर्न कर सकते हो। आई नो सम ऑफ द पीपल, और कुछ मतलब हैं जो लाइक 30 to 35 LPA के पैकेज पर काम कर रहे हैं करंटली। सो अच्छा पैकेज प्रोवाइड करती हैं कंपनीज जब आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है, तो लाइक 10 years, 12 years, 15 years, तो अच्छा अच्छा आप अर्न कर सकते हैं। ग्रेट, बहुत तो अच्छा मैंने क्वेश्चन पूछा। इंडिया में और अब्रॉड में अपॉर्चुनिटीज कहाँ पर ज्यादा है? थोड़ा इस बारे में और थोड़ा। अपॉर्चुनिटीज, यस, अपॉर्चुनिटीज तो आपको इंडिया में भी है। ठीक है, इंडिया में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो इंडिया की कंपनीज हैं या इंडिया के प्रोडक्ट्स हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग हो रही है। इंडिया में भी हम लोग बाहर की ही कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इंडिया की कंपनीज के पास भी, लाइक ये इसका गूगल का है और माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है, तो कंपनीज तो इंडिया की भी हैं जो कि एक्सेसिबिलिटी का काम कर रही हैं, और वहां पे भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। बाहर की कंपनीज भी हैं जो कि काम कर रही हैं। तो अगर आप इंडियन कंपनीज में काम करते हो
तो आपको यहाँ के अकॉर्डिंग आपका पे स्केल होता है। अगर आप किसी बाहर की कंपनी के लिए काम कर रहे हो तो आपका वहाँ के अकॉर्डिंग पे स्केल होता है। ओके ओके, अपॉर्चुनिटीज थैंक यू दोनों मैम। जगह है। दोनों जगह बिल्कुल। या मैम मेरा Yeah. लास्ट क्वेश्चन था, थैंक यू मैम। हाँ हाँ जी, जी। हाँ जी, बताइए। मेरा लास्ट क्वेश्चन था कि पाइथन एनवीडीए, पाइथन और जितना सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एनवीडीए में फुल्ली एक्सेसिबल होते हैं या कुछ इश्यूज होते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का रिलेशन स्क्रीन रीडर से ना कहाँ है? नहीं, क्या बोला? मुझे क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, सॉरी। He's asking कि पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या स्क्रीन रीडर के साथ एक्सेसिबल है? That's what he's asking. अच्छा, ओके। पाइथन स्क्रीन रीडर के साथ। That's what I'm saying. Programming language has nothing to do with screen reader. उसमें कोई इंटरफेस थोड़ी है that you are just typing. You can type it on notepad also. हाँ, वो तो आप एक जो कोडिंग आपको कोड टाइप करना है वो तो आप नोटपैड पे या विजुअल स्टूडियो कोड ये सब यूज करते हैं। आप एडिटर मेनली आपको यूज करना है बस। सो यू कैन डू इट विद एनी स्क्रीन रीडर, मतलब एनवीडिया, जॉस, किसी के भी साथ। Okay. Yeah, I think Nilesh was asking this question, right? No, ma'am, Asit. Asif. So do you have experience of programming or are you learning? No, somewhere? ma'am, I am just asking for You were knowledge. just asking. That's why. अच्छा। Okay. Okay. नहीं, हाँ, यू कैन स्टार्ट लर्निंग, फिर आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। exactly. Thank you so much, Pooja, and really तुमने बहुत बहुत simple, बहुत आराम से समझाया. And as you were saying that having patience is one of the quality, I think you are blessed with that, besides so many other qualities. So it's really, I'm sure it will benefit our students. And thanks, Jasdeep, for hosting it so well and for calling Pooja.